Hello children, this is the seventh part of the chapter A Hero from your book My English Garden. So children, in sixth part we saw that Swami finally when he was trying to sleep in the office room. So there what happened, he found some strange thing moving before him, before his eyes. And what did he do? उसने क्या किया पलट कर? That he bit on that thing. उस चीज़ पर उसने इतनी ज़ोर से काटा that it seemed he has used एनी हार्मफुल इंस्ट्रूमेंट. उसके टीथ इतने शार्प थे कि ऐसा लगा जैसे मानो उसने कोई हार्मफुल कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट या औजार यूज़ किया है. सो लेट्स सी ऑन विच थिंग ही बिट दैट डे या दैट नाइट. सो Ayyo, something. Now I'm going to start from the next stanza which is shown on your screen. So ayyo, now this sound ayyo, it is clear that it is made by a person. एक किसी इंसान ने इस आवाज़ को बोला, यानी वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट था वो कोई लाइव चीज़ थी, कोई जीता जाता इंसान था. सो वो पर्सन क्या कहता है? अयो, समथिंग हैज़ बिटन मी, वेंट फोर्थ एंड agonized cry and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. अब वो क्या करता है? जो भी होता है वो खुद बोलता है कि समथिंग हैज़ बिटन ऑन माई एंकल. वो कहता है कि किसी चीज़ ने मेरे टखने में काट लिया है. एंड जब उसको चोट लगती है तो इंसान क्या करता है? नाउ द मीनिंग ऑफ agonized means painful, right? So the bite was so painful and he started crying. He starts crying. वो चिल्लाना शुरू कर देता है. and what happened with him? He fell. He loses his balance and he fell down. He falls down. वो अपना बैलेंस खो देता है और वो क्या होता है? वो फर्नीचर के बीच में गिर जाता है. एमिड्स का मतलब होता है बीच में. टम्बलिंग का मतलब लुढ़क जाना. तो बहुत ही ज़ोर से वो गिर जाता है. इन अ मोमेंट फादर कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट्स. अब क्या होता है? when other family members of Swami hear this sound, falling sound, so they all come into that room with light. वो लाइट के साथ उस कमरे में आ जाते हैं देखने के लिए कि स्वामी क्या कर रहा है. Now what happens? And all three of them fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. And because it was completely dark in the office room, so all of them जो तीन लोग आए थे, they all fall down because the burglar, the meaning of burglar is thief, चोर होता है. so जो burglar था वो because he was lying in the middle of the way, so because of him all the three people who come right now, they all fall down amidst the furniture with a bleeding angle. so वो गिर जाते हैं उस बर्गलर की वजह से, नीचे उसे टकरा करके गिर जाते हैं. एंड वो जो बर्गलर था वो क्या, उसके साथ क्या हुआ था? उसका जो एंकल था, उसका जो टखना था वो ब्लीड कर रहा था, उसमें से ब्लड निकल रहा था. It means the bite of Swami was very painful and very sharp. Congratulations were showered on Swami next day. His classmates looked at him with respect and his teachers patted his back. The headmaster said that he was a true Scot. Swami had bitten one of the most notorious housebreakers of the district and the police were grateful to him for it. अब क्या होता है? दैट द वेरी नेक्स्ट डे एवरीबडी स्टार्ट्स गिविंग हिम कंग्रेचुलेशन and in his classmates and teachers, they all look at him with respect and the teachers pat his back, उसकी पीठ पर थपथपाते हैं. they all call praise him saying bravo, उसको शाबाशी देते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं. और जो हेड मास्टर होता है स्कूल का वो क्या कहते हैं कि स्वामी because of you only the most notorious housebreaker, one of the most notorious housebreakers is caught.
वो कहते हैं कि स्वामी तुम्हारी वजह से बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा बदमाश जो कि घर को तोड़ता था, घर में नुकसान करता था, चोरियाँ करता था, वो पकड़ा गया है. And the police were grateful to him, and the police also praised him a lot, and then they are grateful to Swami. वो बहुत ही एहसानमंद होते because the thief was the most notorious person, बहुत ही ज़्यादा बदनाम इंसान था. The inspector said, "Why don't you join the police when you are grown up?" Swami said, "For the sake of politeness." Certainly yes. Though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard, or a bus conductor later in life. Okay, so seeing his bravery, the inspector, he asks him to be a policeman when he grows up. जब वो बड़ा हो जाएगा उससे कहते हैं कि तुम एक पुलिसमैन बनना क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो. लेकिन स्वामी क्या कहता है? In front of all the policemen he says yes, very politely he says that yes, sure, I will join. But he had already made up his mind to be a conductor or a engine driver or a railway guard when he grows up in his life. तो मन ही मन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है कि वो क्या बनेगा. वो ड्राइवर बन जाएगा या फिर कोई रेलवे का गार्ड बन जाएगा या फिर वो इंजन ड्राइवर बन जाएगा. So he never wants to be a he never wants to have a prestigious job, very normal job he wants in his life later when he grows up in. जब वो बड़ा होगा तो उसकी जो ख्वाहिश है वो कोई इंजीनियर या डॉक्टर और पायलट जैसी नहीं है. वो नॉर्मल क्या बनना चाहता है? वो एक रेलवे का गार्ड बनना चाहता है, कंडक्टर बनना चाहता है या फिर इंजन का ड्राइवर बनना चाहता है. ही नेवर वांटेड टू बी inspector in his life. Then what happens? When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy? He is asleep." Already. "He didn't have a wink of sleep the whole of the last night," said his mother. So next day क्या होता है? When his father comes back from the club. Now as we know that his father was an advocate and he was a member of a club. वो club के एक member होते हैं where the English used to be the authority. वहाँ पर जो English लोग थे, जो अंग्रेज थे, वहाँ के authority थे. वहाँ पर उसके father क्लब में जाते थे so that उनका जो बॉन्ड है वो बड़े अच्छे ऊंचे ओहदे पर या जो अंग्रेज लोग थे उनके साथ अच्छे से बना रहे. तो उन्होंने क्लब ज्वाइन करके रखा हुआ था. सो वन डे व्हेन द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन द सेम डे, जब उसकी बहुत तारीफ हुई थी स्वामी की. सो ऑन द सेम डे व्हेन हिज फादर रिटर्न्स होम फ्रॉम हिज क्लब, उसके फादर पूछते हैं वेयर इज स्वामी. ही इज स्लीप ऑलरेडी. ही इज अस्लीप ऑलरेडी. सो उसकी जो मदर होती है वो कहते हैं वो ऑलरेडी सो चुका है. He didn't have a wink of sleep the whole of the last night, said his mother. और स्वामी की मदर कहती है कि वो सो चुका है. एंड क्यों? क्योंकि बिकॉज लास्ट नाइट ही कुड नॉट स्लीप. विंक ऑफ स्लीप मतलब उसने पलक भी नहीं झपकी लास्ट नाइट. सो ही कुड नॉट स्लीप फॉर अ मोमेंट, सो दैट्स वाई ही इज स्लीपिंग राइट नाउ. अब उसके फादर कहते हैं वेयर इज ही स्लीपिंग, कहाँ सो रहा है? In his usual place, mother said casually. He went to bed at 7:30. उसकी मदर कहती है कि where he sleeps daily with his granny. उसकी granny जहाँ पर सोता वहीं पर सो गया है. And he has gone to bed at 7:30 और 7:30 बजे वो बेड पर गया है. उसकी मदर कहती है sleeping beside his granny again, father said. No wonder he wanted to be asleep before I could return home. Clever boy. वो उसके फादर कहते हैं बिकॉज ही नोज़ हिज चाइल्ड वेरी वेल. बहुत अच्छे से उसको जानते हैं. उसके फादर ने कहा अगेन ही इज स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी. आई न्यू इट दैट
बिफोर आई कम होम ही डेफिनेटली ही विल स्लीप, ही इज़ वेरी क्लेवर। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि देर इज़ नो वंडर, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, मुझे पता है कि मेरे आने से पहले श्योरली ही वुड स्लीप विद हिज ग्रैनी सो दैट आई कुड नॉट डिस्टर्ब हिम, मैं उसको जगा ना सकूँ, इसलिए वो पहले ही अपनी ग्रैनी के पास जाके सो गया है। सो ही कॉल्स हिम अ क्लेवर बॉय, कहते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। सो चिल्ड्रन दीज टू there are I think more than 2 paragraphs, so I hope that you have understood. Now let me ask you a few questions from these lines. So my first question is to you, that who was the person whom Swami bit that night? कौन वो कौन सा इंसान था, वो कौन था जिसको स्वामी ने काट लिया था उस रात, या फिर स्वामी ने उस रात में जिसको काटा था वो कौन था? हु वॉज दैट पर्सन होम स्वामी बिट दैट नाइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई एवरीबडी वॉज प्रेजिंग स्वामी, वाई वॉज एवरीबडी प्रेजिंग स्वामी एंड गिविंग कॉन्ग्रेचुलेशन? क्यों लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे अगले दिन और उसको क्यों कंग्रेचुलेशन कह रहे थे? वॉट डिड ही डू, वॉट स्वामी डिड दैट डे, उसने क्या ऐसा किया था? क्वेश्चन नंबर 3, दैट what did इंस्पेक्टर आस्क हिम टू डू इन हिज फ्यूचर? जो इंस्पेक्टर था उसने क्या उससे फ्यूचर में करने को कहा? क्वेश्चन नंबर 4, दैट what did स्वामी want to become in his life? बट स्वामी अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता था? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज why did स्वामी sleep early before his father came home? स्वामी क्यों सो गया था पहले ही उसके फादर के, जब उसके फादर आए थे, या फिर उसके फादर के आने से पहले वाई डिड ही स्लीप अर्ली, वो क्यों सो गया था? सो दीज 5 क्वेश्चन यू नीड टू आंसर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड all the lines, all the words from these paragraphs. So children, thank you, take care.